راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ہم بہت خوش ہیں جناب، آج ملک پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یوم آزادی ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے ایک آزاد ملک دیا جس کا نام پاکستان ہے، اور آپ سبھی کو پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کی جانب سے بہت بہت یوم آزادی مبارک۔ خدا ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، خدا ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، خدا کا شکر ہو وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا پاکستان پر ایک نظر دوڑائیے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان زمینی طور پر بھی کتنا امیر ہے۔ پہاڑ اسی ملک میں آپ کو ملیں گے، بلند چوٹیاں اسی ملک میں آپ کو ملیں گی، ندی نالے یہاں پر ملیں گے، معدنیات ملیں گی آپ کو یہاں پر، سرسبز و شاداب میدان ہیں، پھر ریگستان بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے لہلہاتے کھیت بھی ہیں جناب، اور خوبصورت لوگ بھی آپ کو ملیں گے، مہمان نواز اور جذباتی، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اور ایک اور اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر کلچر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ محبت کی ایک ڈور میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دعا کرنی ہے اس مرتبہ یوم آزادی کے موقع پر کہ خدا کرے کہ ہم مختلف خطوں کے لوگ، مختلف صوبوں کے لوگ اسی طرح سے رشتوں ناتوں کی پیار محبت کی ڈور میں بندھے رہیں، اور پاکستان کا تعارف ہی محبت کے نام سے ہو۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی، لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم نے سن لیا جناب، اور ابھی اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے حمدیہ گیت۔ میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، تو اپنی یاد میں، تو اپنی یاد میں رکھنا مجھے، جہاں رکھنا میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا۔
अभी हमने सुन लिया और आज उन दोस्तों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने इनामी मुकाबले में हिस्सा लिया था। आप सभी की कदर हमारे लिए यकसा है और मेरी नजर में तो सभी जीत गए हैं, सभी काबिले कदर हैं। आप सब सलामत रहिए जनाब। अगली मर्तबा प्रोग्राम में खत लिखकर भेजने के लिए पता नोट फरमा लीजिए। आप हमें खत लिखकर भेजेंगे प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। मैसेज या कॉल करेंगे आप हमें या व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 0305 33 77 310 यानी 0305 33 77 310। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। कायनात में मौजूद हर चीज अपनी अलग शनाख्त रखती है, इसीलिए तो अपनी इकसाम के एतबार से तमाम जानदार, फल और जायके खत्म ही नहीं होते, क्योंकि जानदारों और पौधों में ज़ाहरी शिनाख्त के अलावा तमाम जीनियाती खुसूसियात भी पिछली नस्ल से अगली नस्ल को मुंतकिल होती रहती हैं। तो सामईन, कुदरत के करिश्मे में आज हम जानदारों में मौजूद इसी खुसूसियत यानी DNA पर बात करेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या DNA इंसानों और तकरीबन तमाम जानदारों में पाया जाने वाला एक मौरूसी मवाद है। इंसान के जिस्म के तकरीबन हर सेल का DNA एक जैसा ही होता है। DNA में मौजूद मालूमात 4 कीमियाई बेसिस पर मुश्तमिल एक कोड पर महफूज की जाती है, जिसे एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन कहा जाता है। इंसानी DNA तकरीबन बिलियन बेसिस पर मुश्तमिल होता है और 99% से ज्यादा बेसिस तमाम लोगों में एक जैसे ही होते हैं। इन बेसिस की तरतीब किसी जानदार की तामीर और उसे बरकरार रखने के लिए दस्तयाब मालूमात का तयन करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्फाज और जुमले बनाने के लिए हरूफे तहज्जी का इस्तेमाल होता है। DNA की एक खासियत ये है कि ये खुद को कॉपी यानी नकल कर सकता है। जब सेल्स यानी खुलियात तकसीम हो रहे होते हैं तो ये अमल बहुत अहम होता है, क्योंकि हर नए खुलिये को पुराने खुलिये में मौजूद DNA की सही नकल की जरूरत होती है। DNA के डबल हेलिक्स का हर स्ट्रैंड बेसिस की तरतीब को नकल करने के नमूने के तौर पर काम करता है। कीमियाई DNA की पहली बार शनाख्त 1869 में हुई थी, लेकिन जीनियाती विरासत में इसके किरदार को 1943 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बायोफिजिक्स दान रोजलैंड फ्रैंकलिन के काम की मदद से ये तय कर लिया था कि DNA की साख्त दोहरी होती है। हेलिक्स पॉलीमर एक स्पाइरल जिसमें 2 DNA के स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द खम खाए हुए होते हैं। इस पेशरफ्त के नतीजे में साइंसदानों की DNA की नकल और सेलुलर सरगर्मियों के मौरूसी कंट्रोल की समझ में अहम पेशरफ्त हुई है। DNA टेस्टिंग, जिसको जीनियाती टेस्टिंग भी कहा जाता है, एक तिब्बी टेस्ट है जो मुश्तबा जीनियाती हालात को मुस्तरद कर सकता है या फिर इसकी तस्दीक करता है। किसी शख्स के जीनियाती आर्जे के पैदा होने या गुजरने के इम्कानात का तयन कर सकता है और किसी शख्स के नस्ब का भी पता लगाया जा सकता है। चूँकि DNA टेस्टिंग का तजर्बा फौजदारी, इंसाफ और तिब दोनों शोबों में ज्यादा आम होता है, इसलिए इसके फवायद और नुकसानात दोनों हैं। क्योंकि DNA टेस्टिंग और तजर्बा का एक बड़ा नुकसान किसी शख्स की प्राइवेसी पर हमले का इम्कान है। DNA किसी शख्स के बारे में बहुत कुछ जाहिर करता है और इंतहाई हसास मालूमात भी फराहम करता है, जिसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। कुछ मुमालिक उन लोगों के DNA के बारे में मालूमात बैंकों में भी रखते हैं जिन्होंने जराइम का इर्तकाब किया होता है, जबकि DNA फिंगरप्रिंट्स को लोगों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बरक्स DNA टेस्टिंग का एक बड़ा फायदा इसकी खतरे के अवामल और जीनियाती बीमारियों की स्क्रीनिंग करने की सलाहियत है, क्योंकि ये जीनियाती खराबियों की तशवीश की तस्दीक या उनको खत्म कर सकता है। और मुमकिना तौर पर बीमारी की स्क्रीनिंग का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि जीनियाती टेस्ट में हमें एक तर्ज़े जिंदगी डिजाइन करने की भी इजाजत मिलती है जो दुश्वारी वाले जीन को फाल करने से बच सकता है।
इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा मुजरमाना तहकीकात में इसका इस्तेमाल है। डीएनए टेस्ट को जराइम में मुब्तला अफराद की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हर शख्स का डीएनए बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है। शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स, बाल या खून के धब्बे मुजरिम फरीक तक ले जाने में मददगार साबित होते हैं। डीएनए टेस्टिंग के जरिए किसी भी शख्स के आबाओ अजदाद के बारे में जाना जा सकता है कि वो कहाँ से थे, कैसे हालात में से गुजरे और दुनिया के किस खित्ते से ताल्लुक रखते थे। इन सब के बारे में तफसीली तौर पर जाना जा सकता है। यूं डीएनए की बदौलत मालूम होता है कि ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे दिखाई देने वाले लोग भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग होने के बावजूद भी इस छोटे से मादे डीएनए की बदौलत हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ और अपनी जात में बिल्कुल अलग है। इनकी जिंदगी का मकसद भी एक दूसरे से फर्क और इनकी सलाहियतें और खूबियां भी अलग हैं, जिससे खुदा ताला की उसकी तख्लीक में मौजूद हिकमत अया होती है। इंसानी डीएनए तो वाकई कमाल की चीज है। खैर, हमने सेर हासिल बातें सुनी है। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम किया कि हम इस तरह की बातों को समझ सकें। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं। यौम आजादी पाकिस्तान के मौके पर जनाब एक अच्छा सा मिली नगमा सभी की नजर। माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे। जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे। जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग। जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग। जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। तो मैं बताता चलूं कि इनामी मुकाबले में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने जवाबात भेजे, उनके नाम हैं अरसलान कादिर सयाल साहिब, जिनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है। रईस अहमद सयाल, इनका ताल्लुक भी ननकाना साहिब से है। जिशान सरवर सयाल, जनाब का ताल्लुक भी ननकाना साहब से है। मोहम्मद अकरम सयाल, इनका ताल्लुक भी ननकाना साहब से है। नुसरत शमा सयाल साहिबा,
ननकाना साहिब से, मलिक अल्लाह बचाया खोखर मुजफ्फरगढ़ से, रशीद नाज फैसलाबाद से, मिस साइमा सरवर सयाल, मिस रुखसाना रुखसार और मिस इरफाना तबस्सुम, ये भी ननकाना साहिब से। तो जनाब, इससे पहले कि मैं ऐलान करूं कि जीतने वाले खुशनसीब कौन हैं, मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि आप सबने लिखा क्या क्या है। कहा गया कि अगर पाकिस्तान जो है वो ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दे तो वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। इसी तरह से ये कहा गया कि सनती तरक्की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मुल्क के लिए, और ये है कि जो फनी तालीम है उसको फरोग दिया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। फिर बेजा प्रोटोकॉल जो है उसका खात्मा होना चाहिए, और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को ईमानदार और अपने खालिक व मालिक से हकीकी मोहब्बत करने वाला सरबराह मिल जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये सारा खित्ता तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है, अगर आबादी पर काबू पाया जाए। सबने बहुत अच्छा लिखा है, सबने बड़ी अच्छी बातें की हैं, शुक्रिया। अभी जो जीते हैं कुरानदाजी के जरिए से, तो उनमें सबसे पहला जो नाम है ये हमारी बहनें हैं, तीनों ने इकट्ठा लिखा है, मिस साइमा सरवर सयाल साहिबा, मिस रुखसाना रुखसार साहिबा और मिस इरफाना तबस्सुम। इन्होंने लिखा है कि हम ये समझती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का राज उसकी आवाम में पोशीदा है। इसमें क्या होगा कि अगर मुल्क की बागडोर सच्चे और ईमानदार लीडर के हाथ में दी जाए तो इंसाफ का बोलबाला होगा, और फिर क्या होगा कि मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क के मसाइल अपने दस्तयाब वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल ही से हल करने होंगे। बहुत अच्छे। फिर ये कहा कि अखराजात और आमदनी में कतई मुनासबत नहीं, लिहाजा इसमें तवाज़न रखें, और इसी तरह से ही तरक्की की राहें हमवार हो सकती हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने लिखा है, सलामत रहिए। और इसी तरह से दूसरे इनाम के हकदार हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई मलिक अल्लाह बचाया खोखर। लिखते हैं कि मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए ये 3 इकदाम हमें करने हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें फनी तालीम पर तवज्जो देनी है। दूसरा ये है कि बिजली चोरी की रोकथाम करनी है। मैं ये समझता हूँ कि बिजली चोरी के साथ साथ हर तरह की चोरी जो है उसकी रोकथाम हमें करनी है। तीसरी बात जो लिखी है वो ये है कि बेहतर रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। वाकई ये तीनों बातें बहुत ज्यादा अहम हैं, और जबरदस्त बात यह है कि इन सारी बातों पर हम खुद से अमल कर सकते हैं। हम किसी का इंतजार ना करें बल्कि खुद से ही इन बातों पर अमल करना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि किस तरह से तरक्की होती चली जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर इनाम के हकदार हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई रशीद नाज साहिब। रशीद नाज साहिब ने लिखा है कि तरक्की के 3 बड़े सतून हैं। पहला यह है कि हम अपने ही मुल्क में बनने वाली चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करें, उन्हीं को ही खरीदें ताकि सरमायाकारी हमारे मुल्क में हो। इसी तरह से दूसरा ये है हम ऐसी मुराद की पेशकश करें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े सरमायाकार हैं उनको, ताकि उनकी तवज्जो हमारे मुल्क की तरफ हो और वो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, खास तौर पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। और तीसरा और बड़ा अहम कदम ये है कि हमारे मुल्क में बदउनवानी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। ये बड़ी अच्छी बात है रशीद नाज साहिब, शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। बाकी दोस्तों से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जनाब आपने बहुत अच्छा लिखा है। रईस अहमद सियाल साहिब आपने भी बहुत अच्छा लिखा है, सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमारे ये 3 अजीज हैं जिनका इनाम निकला है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाओ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम चाहे किसी भी जगह पे हों, चाहे अपने घर में हों, कामकाज पे हों या दफ्तर में हों, हादसात हमारी जिंदगी का हिस्सा किसी न किसी तरीके से बन जाते हैं। ये हादसात छोटे भी हो सकते हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता है। इन हादसात से बचने के लिए हमने कोशिश की है कि आप तक कुछ तदाबीर पहुंचाई जाएं, कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ करें ताकि हम इन हादसात की रोकथाम कर सकें। इसी हवाले से आज हमारे दरमियान है जनाब सैफुल कहार साहब, जो चेयरमैन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कमेटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद के, और इंटरनेशनल सेफ्टी ट्रेनर हैं। 2020 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसडर बराए सेफ्टी एंड हेल्थ भी नामजद हुए हैं। सैफ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। सैफ साहब, जब भी हम हादसात का जिक्र करते हैं
हमारे जहन में इनसे बचाव यानी सेफ्टी का ख्याल आता है। तो आप हमें पहले ये बताएं कि ये सेफ्टी या ये बचाव क्या है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। अगर हम इस जगह पर बैठे हैं स्टूडियो में, तो अगर हमें खतरा नहीं है कि हम जख्मी हो सकते हैं, हमारा जानी या माली नुकसान हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हम सेफ हैं। हमारी ये सेफ्टी है कि हमें यहाँ पर इन दोनों तीनों चीजों से बचाव का सहारा है। अब अगर हम एक जगह पर गैर महफूज है, मिसाल के तौर पर एक क्रेन है, उसके ऊपर लोड लटका हुआ और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और ये खतरा है, थोड़ा सा भी खतरा है कि वो गिर सकता है, तो जब हम उसके नीचे से गुजरेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम सेफ जगह से नहीं गुजर रहे हैं, वो हमारी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी का मतलब जो जगह सेफ नहीं है, जहां पर रिस्क हो किसी हादसे का, जहां पर रिस्क हो किसी नुकसान का। कि अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम हर काम को मुकम्मल तवज्जो, मनसूबाबंदी और दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी होगी। क्या कोई ऐसे तरीके हैं ताकि कोई ऐसा काम हम करें कि वो हादसा हमारे साथ पेश ही ना आए? जी बिल्कुल, इसके लिए ना हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हादसे से पहले प्लानिंग या हादसे के बाद प्लानिंग। आमतौर पर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका ये कानून है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट कहते हैं, कि सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। और हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम लोग ये हादसा होने के बाद सोचते हैं कि इस तरह का हादसा हो गया तो उसकी हम प्लानिंग फिर शुरू करते हैं कि जनाब ये हादसा हो गया है, आग लग गई है, फलां हो गया है, कोई बंदा जख्मी हो गया, तो फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं। हादसा होने से पहले प्लानिंग करें। नंबर 2, अगर हादसा शुरू हो गया है, आग लग गई है, कोई जख्मी हो गया, तो हमारे पास उसके वो आलात, वो चीजें होनी चाहिए, जैसे आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, किसी को तभी इमदाद देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और ये चीजें हमारे पास मौजूद हों तो ये हादसा के दौरान बचाव में काम आती हैं। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है, जो हमारे यहाँ है ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीज नहीं है, कि हम हादसा के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, उसके नताइज के ऊपर फैसला नहीं करते, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये तीनों चीजों के बारे में, कि हादसा से पहले प्लानिंग करें और हादसा के दौरान का हमारे पास सारा आलात चीजें मौजूद होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पर हमें उसकी रिपोर्ट बनाकर नताइज जरूर अखज़ करने चाहिए। साहब ये नहायत ही अहम बातें हमें आप बता रहे हैं कि हमें हादसा होने से पहले उसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि हम उससे बच सकें। और फिर जैसे हालात का जिक्र किया आपने कि हालात हमारे पास हों ताकि अगर खुदा न खासा ऐसा हादसा हो रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द आजकल जो सबसे अहम और आम देखने वाली बातें हैं वो ये है कि हमारा मीडिया जो है, हर कोई शख्स जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बताएं कि क्या मीडिया हादसा को रोकने के लिए कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? देखें जी, माजरत के साथ कि हम भी एक मीडिया हाउस में बैठे हैं, लेकिन माजरत के साथ ये है कि हमारा मीडिया बहुत सा नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त ये धूम फिल्म आई थी और धूम 1 और धूम 2 आई, उसके बाद बहुत से बच्चों ने वन व्हीलिंग शुरू कर दी, बहुत से बच्चों ने तेज बाइक चलाना शुरू कर दी, उसके ऊपर करतब करने शुरू कर दिए, और जिससे आप देख सकते हैं कि हजारों हादसात रूनुमा हुए। और इसी तरह एक दफा आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर एक फिल्म बनाई गई जिसमें एक बैंक लूटने का एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया। वो इतना करेक्ट प्रोसेस था कि हकीकत में कुछ स्कूल के बच्चों ने सेम उसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बैंक लूट कर वहां से भाग गए। तो ये बेसिकली हमारा मीडिया, आप देखें अगर हम अपने कार्टून में देखते हैं तो हमारे कार्टून 2 किस्म के हैं। एक वो है जो नोबिता और वो शियो मान जी कुछ तरह के कोई हैं, जिनमें ये सिखाया जाता है कि कोई गैबी मदद आके आपको बचा लेगा, आपका होमवर्क भी कर देगा, आपके सारे मसाइल भी हल कर देगा। इसकी मदद से हम बच्चों को नाहल बना रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो बेंटेन जैसे कार्टून है जिसमें वो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, हर वक्त जंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जंग का हिस्सा बन रहे हैं। हम अपने बच्चों को हथियार चलाना सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को लड़ना सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को छोटे छोटे दहशतगर्द खुद बना रहे हैं। पहले हीरो सिगरेट पीते हुए नजर आते थे, लेकिन उसके बाद जब पाबंदी लगी और हीरो ने सिगरेट छोड़े हैं तो उसके बाद सिगरेट इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने वो छोड़ दिए। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब इसके पॉजिटिव किरदार भी हैं, लेकिन हादसात के लिहाज से जो मैंने चंद आपको एग्जांपल दी कि ये थोड़ी सी हमारी नेगेटिविटी भी जी, इस पे हमें भी सोच विचार करनी चाहिए कि किस तरह से हम मीडिया में इस तरह की फिल्में देखते हैं तो उसमें से क्या हम अच्छी चीज जो है वो अखज़ कर सकते हैं। सब नहायत ही शुक्रगुजार है आज की सारी गुफ्तगू के लिए। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं ताकि इन हादसात से बचने के लिए हम अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है आइंदा भी जब अगले प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे तो इस तरह की और बहुत मुफीद और खूबसूरत बातें हमारे लिसनर्स तक, सुनने वालों तक पहुंचेंगी। आज के लिए हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो,
हम सभी ये चाहते हैं हमारा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करे और हमारा सर फख्र से बुलंद हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर बहुत ज्यादा अमल करने की जरूरत है। सरे फहरिस्त ये है कि हम वक्त की कद्र करें, और फिर ये कि हम अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से मोहब्बत करें। क्या खूब कहा है कलाम मुकद्दस में कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो। बचत और खर्च, इस पर हमेशा अपनी आंखें खुली रखें। देखें कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है। ज़ाब्ता-ए इखलाक की पाबंदी करें। हर लिहाज से इखलाकियात कूट कूट कर भरी हुई होनी चाहिए। इज्जत नफ्स और खुददारी हम में होनी चाहिए। न सिर्फ हम अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, बल्कि दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। दूसरों के हुकूक की पासदारी करें, बड़े से बड़े पैमाने पर भी और छोटे से छोटे पैमाने पर भी। और अगली बात यह है, एहसास जिम्मेदारी, ये बहुत जरूरी है। और इन सब से बढ़कर यह है कि हम सब के अंदर कोई बड़ा काम करने की लगन होनी चाहिए। जब हमें बड़ा काम करने की लगन होगी, फिर हम मेहनत भी करेंगे और जो कुछ उसके लिए दरकार होगा वो करने की कोशिश करेंगे, और यकीनन हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। आइए इन सारी बातों पर हम अमल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। खुदा कादिर मुतलक, हम अपने प्यारे मुल्क के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। दरखास्त करते हैं इस मुल्क में अमन व आशती रहे। दरखास्त करते हैं कि ये मुल्क हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे, और तेरी मिन्नत करते हैं ये तमाम खुसूसियात हम सब में पैदा हो जाएं। हम बाइखलाक हों, ईमानदार हों, जिम्मेदार हों, अपने काम से मोहब्बत करने वाले, और सबसे बड़ी बात, ऐ हमारे प्यारे रब, हम तुझसे डरने वाले, तेरा एहतराम करने वाले और तेरे कवानीन पर हकीकी मानों में अमल करने वाले बन जाएं। हमारे लिसनर्स को बड़ी बरकत अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक दफा फिर से मेरी जानिब से, पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज की पूरी टीम की जानिब से आप सभी को जश्न आजादी मुबारक। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।